रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। I've started a recording. ठीक है, काम की बात सुनो। We are learning revenue recognition. याद करना, what did we study in this? रेवेन्यू माने सेल्स की एंट्री कब करना है, सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज. When do we recognize the revenue? Within this we studied 3 points: sale of goods, sale of services, interest, dividend and royalty. सुनना जो लोग ने लास्ट लेक्चर मिस किया. Revenue recognition means when do we pass entry for sale, debtors to sale. When do we recognize revenue? Sale of goods, when I sell the goods, when do I pass entry for sale? When I sell services, when do I pass entry for sale of services? Or interest, dividend, royalty income. That's a question. हमने पूरा theory standard last time खत्म कर दिया था. Just revising 2 minutes brief. For sale of goods, we recognize the revenue when performance is achieved. Performance is achieved मतलब क्या? 4 conditions are satisfied for sale of goods. We say performance is achieved. For example, हम लोग 11th स्टैंडर्ड आसाम वाले जो स्टेट थे, वहां की टीचर 11th के स्कूल में एक एंट्री देती थी, sold goods on 3 months credit to Mr. Banwa. Banwa was very popular. Banwa is very popular surname in Assam. तो हम लोग एंट्री करते थे, Banwa account debit to sales. गुजरात महाराष्ट्र है तो sold goods to Mr. Patel 3 months credit. The entry is Patel account debit to sales account. The moment goods were sold, we were passing the entry. तब पीछे में कुछ ज्यादा नहीं बताया था, बट अभी उसी बात को हम टेक्निकल एंगल से एनालाइज करते हैं. तो I say performance is achieved when these 4 conditions are satisfied. Number 1, ownership of goods is transferred. Ownership of a goods is transferred. Number 2, no control over goods by the seller, which is usually associated with the ownership. Physical possession शायद न भी दिया हो, but ownership चली गई, and I don't have any right which are usually associated with the ownership. मतलब मैं ऐसे seller वही goods और आगे और किसी को नहीं बेच सकता हूँ मैं, because I already sold to somebody. Number 3, risk and reward is transferred. Price increase होता है, goods का फायदा होता है to the owner, not to the seller. हमने ट्रांसफर कर दिया है. प्राइस डाउन हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो मेरा नहीं होगा, बायर का है, मैंने बेच दिया है. सो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड. एंड नंबर 4, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन. कंसिडरेशन माने सेल प्राइस में मुझे कोई डाउट नहीं है, कलेक्शन मुझे कलेक्शन में भी डाउट नहीं है. ओवर. देन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? Number 1, when performance is achieved. That means when services are rendered. Now some services, depending upon the nature of services, can be said to be rendered when complete work is over. Just auditing services. Until final audit report is signed, तब तक I can't say part service हो गया. But some services can be rendered in part also. जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, CA की 8 सब्जेक्ट्स है, 1 लाख रुपीस फीस है, 12,500 रुपीस पर सब्जेक्ट. अप टू द ईयर एंडिंग 3 सब्जेक्ट्स का कोचिंग हो गया. देन आई कैन से आउट ऑफ 1 लाख proportionately 3 subjects out of 8 subjects have completed. Proportionate revenue can be recognized. Some service only full revenue can be recognized, because until full services are rendered, we cannot say performance. In any way, second condition तो same ही है. No uncertainty about consideration and collection. मतलब कितना रुपीस का ट्रांजेक्शन है, no uncertainty about the consideration and no doubt about the collection. Alright. फिर हम लोग ने देखा था प्राइस रिवीजन. कभी-कभी हम प्राइस इंक्रीज कर देते हैं बैक डेटेड से. We call it a retrospective. Technically seller cannot raise the price retrospectively. जैसे कॉलेज ने हमको आज नोटिस दे दिया, अरे एफआईबी को क्या आपने जो फीस भरी थी ना,
1 लाख कम था, रियली 1,15,000 चार्ज करना चाहिए। तो क्या हम लोग 15,000 डिफरेंस देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। So in case of a price revision from backdated retrospectively, I as a seller can recognize revenue only when certainty of collection is there. Guarantee of collection है, reasonable certainty है, तो ही recognize कर सकता है, वरना no buyer will give. Interest, dividend and royalty के बारे में क्या था? Interest की income कब recognize करते हैं? Interest time basis. I say performance is achieved, मतलब the time is over. मैंने लोन दिया है, मैंने एग्रीमेंट बनाया है, एवरी 1 मंथ आई चार्ज इंटरेस्ट, 1 मंथ खत्म हो गया, टाइम हैज elapsed, मींस परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। डिविडेंड के लिए इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? डिविडेंड आंसर व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड। कंपनी डिक्लेयर्स मतलब हु डिक्लेयर्स? इफ इट इज an interim dividend, board of directors has a power to declare dividend. If it is final dividend, board of directors only propose, but it is the shareholders in the annual general meeting, they approve the dividend. Okay, so तब हमारा right to receive dividend establish होता है। So dividend के लिए when right to receive dividend is established, I mean when the dividend is declared by the board of directors for interim or shareholders for final. Royalty, royalty is a type of rent. मैं कोई asset यूज करने देता हूँ, मैं रेंट लेता हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ रॉयल्टी। When can I say performance is achieved? अरे तो हमने कंडीशन जो भी लिखा होगा एग्रीमेंट में, that condition is fulfilled. For example, मेरा मंथली रेंट है 10,000 a month, तो when month is over, performance is achieved. Suppose मेरा रॉयल्टी प्रोडक्शन रॉयल्टी है, प्रोडक्शन रॉयल्टी, तो when the goods are produced, the performance is achieved. So when the performance or the condition relating to royalty are fulfilled, I say revenue can be recognized. In all the three situations, interest, dividend and royalty, there should be no doubt, no uncertainty regarding consideration and collection. पूरा स्टैंडर्ड का समरी इतना ही है। We have completed this. Then अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम स्टडी करने वाले हैं, there are two types. One numerical, actual practical, वो तो मैं सब सॉल्व करेगा, एक्चुअली सॉल्व करेगा। सेकंड वन प्योर थ्योरी, केस स्टडी। तो केस स्टडी वाला मैं नोट्स में डिक्टेट नहीं करेगा, पर इसकी पीडीएफ आपको आई विल शेयर। क्या मैंने इसकी AS9 की पीडीएफ शेयर किया है? नहीं, तो मुझे व्हाट्सएप पर एक दिन रिमाइंडर कर देना मेन ग्रुप पर, शेयर करो तो आई विल शेयर इट। ठीक है, चलिए, ये येलो कलर का मतलब मैंने फर्स्ट कर दिया है, डिविडेंड वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। ओके, फिर हम लोग यहाँ गए थे, ये भी हो गया था। पता है ये क्या था? हम लोग ऐसे सेलर जो इनवॉइस रेज करते हैं, कंडीशन रहती है, गुड्स सोल्ड ऑन 3 मंथ क्रेडिट, आफ्टर क्रेडिट पीरियड इंटरेस्ट एट 15% per annum will be charged। आप लोग वो कस्टमर है, we had a discussion on this last week। I repeat my question, I am a seller, I give you 3 months credit, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स, फिर एक बिल में प्रिंटेड लाइन होती है ना, आफ्टर द ड्यू डेट इंटरेस्ट 15% पर annum will be charged। आप कस्टमर है, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम लोग कपड़े बेचते हैं, नॉट रेडीमेड गारमेंट, क्लोथ मिल वाले हैं। हमारा कस्टमर है सब रेडीमेड मैन्युफैक्चरर, दे टेक द क्लोथ, फिर वो शर्ट वगैरह बना देते हैं। एनीवे, क्या लग रहा है, टेक्सटाइल मिल को मनी 3 मंथ में रियल में आ जाएगा जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इनवॉइस पर लिखा है? आंसर डेफिनेटली नो। कस्टमर समझता है 3 मंथ तो लिखना होता है, इट इज अंडरस्टूड, 4-5 मंथ तो ले ही लेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं होता है? रियल ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके बिजनेस में भी ऐसा होता है कि कस्टमर नॉर्मली रेटिंग पेमेंट करता है? अच्छा, लेकिन हमने एक लाइन लिखी थी कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप लोग वो कस्टमर है, क्या मुझे सेलर को 90 डेज के बाद इंटरेस्ट देंगे? अबे तुम इतनी भोली मत बनो, बिजनेस के एंगल से सोचो। मुझे स्माइल नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। यू आर द कस्टमर, मैं मिल वाला हूँ, आप मैन्युफैक्चरर है, आप रेगुलर कस्टमर है। 3 मंथ के बदले में आपको पता है 4-5 मंथ्स तो होता है, तो 1-2 मंथ का इंटरेस्ट देंगे मुझे बाद में, क्योंकि लिखा था। अगर नो, ऐसा थोड़ी इंटरेस्ट देना होता है।
वो जो लास्ट लेक्चर में एक भोला आदमी था, बोलता है नहीं नहीं हम सब इंटरेस्ट लेते हैं, आज आया नहीं है। तो उसका आंसर ये था, वो जब दादागिरी करेगा ना इंटरेस्ट लेना है तो मैं सप्लायर ही मेरा चेंज कर देगा। सप्लायर की थोड़ी कमी है इंडिया में, रियलिटी में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अनलेस इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील है तो भी जो इंटरेस्ट मांगता है उसमें से थोड़ा ही मिलेगा, इन जनरल नहीं देते। तो ये क्वेश्चन वही था कि आज तक हमको कभी इंटरेस्ट मिला नहीं था और आज हम पहली बार, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। क्या अलाउड है? नहीं। टाइम पास हो गया, टाइम हैज पास, वो कंडीशन फुलफिल हो गया, बट सेकंड कंडीशन फेल हो गई। विच सेकंड कंडीशन फेल हो गई? हाँ, देयर शुड बी नो आंसर अबाउट द कलेक्शन। इधर तो गारंटी है नहीं मिलने की। So interest cannot be recognized in this example. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या ये भी डिस्कस किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर has decided on March 15 to increase the sale price of certain goods sold retrospectively. मैंने अटेंडेंस शीट दिया है ना आप लोगों को, इसने साइन नहीं किया तो कर देना। एनीबॉडी नॉट साइन? ऑल ऑफ यू साइन? ओके ठीक है, रखो। The board of directors have decided on March 15 to increase the sale price of certain item of goods sold retrospectively from January. मतलब मार्च 15 को मैं डिसीजन लेता हूँ, जो भी गुड्स मैंने जनवरी के बाद बेचा है ना, यूनिलैटरली वन वे मैं प्राइस बढ़ा देगा। आप लोग वो कस्टमर है जिसने मेरे से जनवरी फरवरी में गुड्स परचेज किया होगा। अर्लियर प्राइस वाज 1 लाख, नया प्राइस 1,50,000 है। मैंने आपको फोन करके बोल दिया, ईमेल लिख दिया, अभी आपको 50,000 देना होगा बिकॉज आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस। आपका क्या रिएक्शन होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? डेफिनेटली बुरा होगा। विल यू पे मनी? नो वे। आप उसको रिवर्स मेल लिखो, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया 50% डिस्काउंट लेने का सबसे, तो वो भाव बढ़ाना बंद कर देगा, बरोबर ना? अरे हाँ या ना? तुम लोग को यहाँ से क्या मिलती है? सीखना है? नहीं, वो तो अपने आप सीखना ही है। अरे कुछ टेक अवे होना चाहिए। सो क्या टेक अवे है? सामने वाले से डील कैसे करना है, जो भी करना है एकदम भोलेपन से करना है। उसने बोला कि वी हैव इंक्रीज द प्राइस, तो हमको लिखना है वी रिस्पेक्ट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन। सो नाउ यू आल्सो रिस्पेक्ट आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन। ओके, आप 50% प्राइस बढ़ा दो, 1 लाख का 1,50,000 we will pay you. Now our board of directors decision is give 50% discount. So 1,50,000 minus 50% will give you only 75,000. In short, you cannot increase the price. ठीक है? You can't recognize the revenue. अभी हम यहाँ आए हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा मैं लिखा क्यों नहीं रहा हूँ? Because इसका आंसर प्रिंटेड है, so I'm not giving you. But this I'll share. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन का बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर मैं हम लोग रीड करेंगे एंड आंसर भी रीड करेंगे। सपोज मैं सेलर हूँ, आई एम ए सेलर, मुझे कोई कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, 1 लाख रुपीज भी दे दिया है, एंड एवरी मंथ मुझे 25,000 लाइक दैट गुड सप्लाई करना है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। उसने कुछ कस्टमाइज गुड्स बनाया है, हमको ऑर्डर दिया है, एवरी मंथ 25,000 आई हैव टू सप्लाई, पैसे भी दे दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो फाइटिंग। 1 मंथ हो गया, मैंने 25,000 का गुड सप्लाई किया, ऑब्वियसली मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा बिकॉज ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट मंथ हो गया, अगेन गुड्स आर डिलीवर्ड, ओनरशिप ट्रांसफर सब हो गया, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। थर्ड फोर्थ मंथ में क्या हुआ, गुड्स रेडी हो गया था, मैं अबाउट टू डिस्पैच कर रहा था, तब वो कस्टमर का चेन्नई से फोन आ गया, अरे रुक जाओ। मैं बोला क्या हो गया? अरे बोलता है चेन्नई में एकदम फ्लडिंग है। फ्लडिंग हुआ था ना लास्ट वीक, कुछ बहुत ज्यादा रेन हो गया था, हमारे सब गोडाउन में पानी भर गया है, प्लीज डोंट सेंड द गुड्स। उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला अरे मेरी गुड्स तो रेडी है, मैं अबाउट टू डिस्पैच कर रहा हूँ। बोलता प्लीज डोंट सेंड, बाजू पर रख दो किधर, जब मैं बताएगा तब देना। तो हमने गुड्स बाजू पर रख दिया। अब बताओ ये वाला गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं कि नहीं? द डिलीवरी इज विथहेल्ड at the request of buyer। क्या आपने सेल इनवॉइस रेज कर दिया होगा?
अरे वो तो पक्का करेंगे ना, सेल इनवॉइस तो रेज कर ही देंगे, पैसे भी मिल गए, पैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए मनी एक्चुअल मिलना इज नेवर इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर शुड बी नो डाउट uncertainty about the consideration and collection, actually this is not important, ठीक है। तो उसके कहने पर मैंने गुड्स बाजी पर रख दिया, ऑफ कोर्स मैंने इनवॉइस रेज किया है, पैसे भी पूरा मिल गया है। कोई कस्टमर, नया कस्टमर आता है, बोलता है अच्छा गुड्स है, मैंने बोला हाँ 6 महीने वाले के लिए बनाया है, अरे मेरे को बेच दो ना, मैं डबल प्राइस देता हूँ, बेच दूं क्या उसको? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, वो मेरा नहीं है अभी। तो अल्टीमेट बताओ आंसर क्या आएगा, शुड आई रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू और नॉट? ये ट्रांजैक्शन में इंस्टीट्यूट ने, प्रोफेशनल बॉडीज ने बोला है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि डिलीवरी वाज स्टॉप ओनली एट द स्टॉप, मतलब पोस्टपोन विथहेल्ड एट द बायर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बैकग्राउंड के साथ। A Limited entered into a contract with B to dispatch goods valuing 20 every month for 4 months upon receipt of entire payment, payment भी ले लेना है। B Limited accordingly made a payment of 1 lakh, पैसे आ गया, actual receipt of money is not important। A Limited started dispatching the goods in 3rd month, that means first 2 month का तो चला गया है, first 2 month का तो recognize कर देंगे। Due to a natural calamity, B Limited buyer requested A not to dispatch goods until further notice. Though A Limited is holding the remaining goods worth 50,000, 3rd and 4th month walwa, ready for dispatch. A Limited accounted 50,000 as sales, pehle wala, and transferred the balance 50 to advance received account. पहले 50 का सेल कर दिया, नो प्रॉब्लम, रिमेनिंग 50 बैंक टू एडवांस वर्ड लिखा है, बैंक टू सेल्स के बदले में बैंक टू एडवांस वर्ड लिखा है। कमेंट अपॉन द ट्रीटमेंट, क्या कहना है, क्या ये ट्रीटमेंट सही है? रिमेनिंग 50,000 एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करना, नॉट इन अ सेल्स। हमने अभी तो डिस्कस किया, आप लोग सबने सही आंसर दिया था। क्या ट्रीटमेंट सही है? ट्रीटमेंट सही नहीं है, ठीक है। चले आगे, सी इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा, हम रीड करें, उन्होंने क्या आंसर दिया है। एस पर S9 पैराग्राफ कभी नहीं याद रखना है हमको ये टॉपिक में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स, परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज अचीव्ड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो दैट मींस हम 4 कंडीशन कॉपी कर देंगे। ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, no control over goods associated with the ownership, risk reward is transferred, no uncertainty about the consideration and collection। obviously ये 4 लिखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, seller of goods has transferred to the buyer the property in a goods, मतलब ownership right, for a price, all significant risk reward has been transferred to the buyer, price increase decrease होता है, risk होता है, वो transfer हो गया है। Seller retains no effective control of the goods which is usually associated with the ownership, no control over the goods, and no uncertainty exists about the consideration, so no uncertainty about the consideration and collection। so हम लोग ने थियरी पार्ट लिखा कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, फिर हम हमारा केस में अप्लाई करेंगे कि हमारे केस में क्या हुआ है इन द गिवन केस। बराबर ना, अभी केस स्टडी लिखने को आ गया, पहले हम रूल लिखेंगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस लिखेंगे, और फिर हमारा लास्टली कंक्लूजन लिखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स coincides with the transfer of risk and reward to the buyer। जैसे ही मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, वर्चुअली इट मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है। ऑल्सो द सेल प्राइस रिकवर्ड हो गया, पैसे भी तो मिल गए, हेंस द सेल इज कंप्लीट, डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड only at the buyer's request, hence S Limited should recognize the entire sale 50 plus 50 and 1 lakh, no part should be treated as advance। आगे चले, क्या हमारे क्लास में से कोई सीए की एग्जाम दे रहे हैं बच्चे लोग अभी नवंबर में जो गया? एनीबडी अपीयर? खत्म हो गया कि चल रही है? Is the exam over or going on? All right. Moon Limited, snap question.
sold goods worth 650 to Star. So Moon Limited is seller, हम लोग है, Star is the buyer, for a trade discount of 53, and it was of course agreed by the seller. Suppose मैंने 53,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, I sold goods of 1 lakh, sorry 10 lakh, say 50,000 ट्रेड डिस्काउंट, sell 10 lakh 50,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं एज ए सेलर बैंक टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स एंट्री 10 लाख से करूं या 50,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 9 लाख 50 का करना है? 11th स्टैंडर्ड याद करो. I sold goods of 10 lakh, ये don't, मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ. I sold goods of 10 lakh 50,000 ट्रेड डिस्काउंट 950 चेक मिलेगा 3 मंथ पीरियड के बाद. तो डेटर्स टू सेल एंट्री शुड आई राइट 10 लाख और 950? तो 11th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है. 950 is right answer. Trade discount is never recorded, याद है ना? Trade discount is never recorded in the books. आपको पता है ये बात? On receipt of goods, Star has found goods worth 67 are defective. मैं सेलर हूँ, मैंने आपको goods दिया. I raise the invoice also. Goods के साथ usually invoice भी जाता है. आपको डिलीवरी मिल गया. आपने जब बॉक्स देखा तो 67,000 का गुड्स पसंद नहीं आया. कैसे आएगा? डिफेक्टिव था. आप क्या करेंगे? उससे दामाद तर्जमा ही बनाएंगे कि मुझे रिटर्न कर देंगे? मुझे ऑब्वियसली रिटर्न कर देंगे. अब क्वेश्चन है, जो मैंने गुड्स बेचा पूरा इनवॉइस दिया था, बाद में आपने मुझे कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मैं एंट्री किससे करूं? वो गुड्स रिटर्न वाला है उससे माइनस करके करूं कि इनिशियली तो पहला पूरा सेल प्राइस से रिकॉग्नाइज हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा. आपको क्वेश्चन समझ में आया? सपोज मैंने 5 लाख का गुड्स बेचा है, इनवॉइस भी रेज कर दिया, बाद में आपने 50,000 का रिटर्न कर दिया, तो शुड आई पास माय इनिशियल रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट 5 लाख और 450? 5 लाख, क्योंकि जब मेरा ओनरशिप राइट ट्रांसफर हुआ था तब तो 5 लाख का ही हुआ था, तब 5 लाख हुआ था. सो सेल्स रिटर्न इज अ सेपरेट एंड सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन. सेल्स रिटर्न इज अ सेपरेट एंड सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन. एंट्री तो स्टार्टिंग में 5 लाख की होगी, except suppose that sale was on approval. I think some last time यहाँ अटक गए थे. Last point was this. Unless the sale was on approval. What is sale on approval? मैं कुछ कस्टमर को दे रहा हूँ, he will start using also. But I am giving him 1 month's time to decide he would like to keep or return. Within 1 month, no question asked, he can give me goods back. हाँ, 1 मंथ के अंदर उसने हाँ भी बोल दिया तो कंफर्म सेल हो गया. या तो उसने 1 मंथ तक ना रिटर्न किया है ना आंसर दिया यस और नो, तो भी एट द एंड ऑफ 1 मंथ सेल्स कंफर्म हो गया, बिकॉज उसका राइट टू रिटर्न गुड्स चला गया. तो ये गुड सेल ऑन अप्रूवल वाला होता है. उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करनी पड़ेगी? ओनली व्हेन कस्टमर से यस. व्हेन ही सेज यस, within that 1 month officially he says yes at that time, or when 1 month is over automatically yes, he did not return is that. Okay, तो वो सेल ऑन अप्रूवल होता है. नेक्स्ट, सपोज मैं गुड्स बेचता हूँ, आई एम सेलिंग द गुड्स, लेकिन बायर की कंडीशन है कि आफ्टर रिसीविंग गुड्स आई विल इंस्पेक्ट फॉर द क्वालिटी. ओनली दिस पर्टिकुलर क्वालिटी इज प्रॉपर, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट, वरना मुझे वो काम नहीं आएगा गुड्स. सो मैंने गुड्स दिया, अब क्या वो वाला गुड्स का रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूं कि जब तक क्वालिटी का उसने आंसर नहीं दिया तब तक नहीं करूं? यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? गुड्स मैंने दिया है, बायर ने बोला है आई विल रिसीव द गुड्स एंड अप्रूव इट सब्जेक्ट टू कंट्रोल टेस्ट बीइंग पास. तो जब तक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं होती है बायर की साइड से, तब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. चलिए विद दिस बैकग्राउंड हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमने 6 Moon Limited sold goods of 650 to Star, trade discount 53 which we have agreed, sale is effected, goods are dispatched, over, कहानी खत्म. But on receipt of goods, Star has found that goods worth 67,000 are defective. Star returned the goods and made the payment for the balance amount. ठीक है, obviously 650 में से पहले से तो 53 का ट्रेड डिस्काउंट है,
कितना पेमेंट करेगा वो, फिर 67, तो उसने सेल्स रिटर्न कर दिया है, ऑब्वियसली 530 का पेमेंट करेगा, नो डिस्प्यूट अबाउट द मनी, उसने दे दिया, हमने ले लिया। अब क्वेश्चन है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किससे करूं, फर्स्ट टाइम 650, 597 और 530। 650 तो आउट है, वो तो आउट है, क्योंकि हमें मालूम है ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। हमें जो छोटा मोटा डाउट है वो 597 वर्सेस 530 का होगा। Okay, that is what the doubt we may have. 53 we never have a doubt. Trade discount is not recorded. तो आंसर ये है, सही जवाब 597 unless that goods was sold on approval or that goods was subject to acceptance of passing certain condition. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो फिर जैसे ही आपने गुड्स बेचा, एक बार सेल लेटेस्ट टू सेल का एंट्री हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा, गुड्स रिटर्न 67 will be considered as a separate transaction. देखो इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, as per S9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का डेफिनेशन दिया है, ग्रॉस इनफ्लो, पता है ना, कैश और रिसीवेबल डेटर्स in the ordinary course of the business, याद है ना, in the ordinary course of business, from the ordinary activity of the business, ये सब इधर satisfy हो गया। However, trade discount or the volume discount are given in the ordinary course of business should be deducted. So whatever trade discount is given in the normal course of business should be deducted to find the revenue. Revenue from sale should be recognized at the time of transfer of significant risk and reward, हमको पता है। If the delivery of the sale is not subject to approval from the customer, transfer of significant and risk and reward will take place when the sale is effected and goods are dispatched. So, except when the sale was subject to condition like approval, etc., forgetting those, my risk and reward is transferred immediately. The moment goods are sold, goods are dispatched, revenue is sales invoice is raised. In the given case, trade discount allowed in the ordinary course of business, hence revenue should be recognized for 597 and goods worth 67 should be considered separately as a sales return. However, when trade discount is not in the ordinary course of business, actually trade discount by definition ordinary course नहीं होता है, तो मैं as a student टीचर ये लाइन पसंद नहीं करेगा, कौन सा, if the trade discount is not in the ordinary course of business, then obviously I will not deduct the trade discount. But trade discount by default हमेशा क्या माना जाता है, it is in the ordinary course of the business. हाँ, ठीक है, बस इतना ही है। So ultimately आंसर क्या था, मेरे को रेवेन्यू कितने से रिकॉग्नाइज करना था, 597। नेक्स्ट सम तो वही है जो हमने कर दिया है, नहीं ये बाकी है नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है, हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन रिलीज करते हैं, पीरियोडिकल मंथली। आप एक अच्छा पीरियोडिकल नाम बता सकते हैं जो कॉमन है इंडिया में, फेमस पीरियोडिकल कोई है, मंथली मैगजीन? और तुम तो सीधा इंटरनेशनल चले गया। टाइम मैगजीन इज राइट आंसर, बट वो इंटरनेशनल मैगजीन है, पब्लिश फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑफिशियली। ऐसा कोई इंडियन मैगजीन? बिल्कुल सही है। कौन सा? अच्छा, इंडिया टुडे। फिल्म फेयर मैगजीन भी आता है मूवी वगैरह का। और गर्ल्स लोग के लिए गुरुवा शोभा करके कोई आता है? आता है कि नहीं आता है? आउटलुक मैगजीन भी आता है, राइट। ये सब वो मंथली मैगजीन में पता है ना एडवर्टाइजमेंट आती है। जो लोग को सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, बैंकिंग एग्जाम वगैरह, उनको मैंने रेकमेंड किया था लास्ट ईयर कौन सा मैगजीन रीड करने के लिए, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, CSR, जरूर से पढ़िए। किसी कोई लोग अभी तो आप लोग इधर आ गए, हमारी जो लाइब्रेरी है ना वहाँ भी कंपटीशन सक्सेस। आप लाइब्रेरी में गए कि गए नहीं? अंदर बैठ के पढ़ना अलाउड नहीं है, राइट? जाना भी अलाउड नहीं है। नहीं, 1 मिनट। अब बुक लेने के लिए जा सकते हैं ना, यू कैन टेक होम द बुक्स, यू कैन टेक होम। तो बुक
टेक होम करने के लिए तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा ना. हमारा रीडिंग रूम देव क्लोज एट द मोमेंट, राइट. एनीवे वहाँ मैगजीन भी होता है, मैगजीन है वहाँ. एंट्री मारते ही लेफ्ट साइड सब मैगजीन की रैक है. पक्का देखना कंपटीशन सक्सेस रिव्यू होगा. नहीं है उधर तो मुझे बताना. आई विल टेल द लाइब्रेरियन टू सब्सक्राइब फॉर अस. नहीं है तो पक्का मुझे बताना एंड रीड करना कंपटीशन. अच्छा जो लाइब्रेरी वो जो मैगजीन की रैक होती है ना, ऊपर देखेंगे तो आपको वन मैगजीन दिखता है ऐसा सीरीज में. वन इधर 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 वो ड्रॉवर टाइप का होता है. उसको उठाएंगे तो अंदर पूरा पुराना इश्यू सब मिलता है. द लेटेस्ट इश्यू दे पुट इट ऑन द फ्रंट, तो आपको लगेगा एक ही कॉपी है. नहीं, व्हेन यू ओपन इट सब पुराने मैगजीन मिलेंगे. ठीक है. आप जरूर से कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ना. इफ यू वांट टू गिव एनी पब्लिक एग्जाम लाइक बैंकिंग सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डिफेंस वाली एग्जाम, तो आपको आइडिया मिलेगा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम कैसे लेते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं. पक्का पढ़ना. मैं वो मैगजीन 10th स्टैंडर्ड के बाद रेगुलरली पढ़ता था. 11th एंड 12th में हम लोग तो कॉलेज जाते थे ना, सिनेमा कॉलेज लाइब्रेरी मैगजीन इशू का. एंड जो भी सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं उसको हमेशा बोलता हूँ पहला ही मैगजीन सब्सक्राइब, मंथली मैगजीन, बट यू कैन रीड इट. ठीक है. तो वो जो मैगजीन होते हैं ना, इनसाइड द मैगजीन एडवर्टाइजमेंट होती है. सो मैगजीन के लिए वी कॉल इट अ पीरियोडिकल. पीरियोडिकल के लिए एडवर्टाइजमेंट विल बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अब क्वेश्चन ये है वो एडवर्टाइजमेंट इनकम मैगजीन कब रिकॉग्नाइज करेगा? क्या आंसर है? राइट. तो आंसर ये है एडवर्टाइजमेंट इनकम मैगजीन पीरियोडिकल will recognize when the performance is achieved. ये देखो फोटो देखा, अच्छा फोटो है. स्टूडेंट इधर है या नहीं है? क्या है ये वाला फोटो? इसके पर केस स्टडी कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्या सोच रही, किस मेंटल स्टेट में जा रही है. एंड जो आंसर मिले, और कंपलसरी सबको 10 लाइन लिखना है. तुमको लगता नहीं वो 10 लाइन लिखेंगे तो बहुत कॉमेडी टाइप का सीन हो जाएगा? नॉट अ बैड आइडिया. प्लस सेकंड पॉइंट, उससे आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा. टू बी ए सक्सेसफुल इन द लाइफ करियर, इमेजिनेशन पावर इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ऑलराइट, आगे चलते हैं. सो द क्वेश्चन वाज, लोग को नहीं मालूम है जो ऑफलाइन है हम क्या बात कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज मैगजीन का रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? तो आंसर व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के लिए परफॉर्मेंस इज अचीव्ड. तो आपने बराबर आंसर दिया है. व्हाट इज दैट आंसर? When that magazine is released, मतलब कि when that advertisement is published. Okay. पैसे कब मिलता है? It's not important. पैसे एडवांस में मिलता है. You get money in advance or you get money in 2 months, 3 months time. That receipt of money is not important. But no uncertainty about the consideration and its collection. मतलब कितना पैसा मिलेगा वो सर्टन होना चाहिए. एंड डाउट भी नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं मिलेंगे. पहले से डाउट थोड़ी होता है, तो बाद में पता चलता है पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है. बट एटलीस्ट जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपको बिल्कुल डाउट नहीं है पैसा नहीं मिलने का, वरना तो कुर्सी नहीं बेचेंगे, सर्विसेज नहीं बेचेंगे. ऑलराइट. तो विद दैट बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड के साथ हम क्वेश्चन रीड करते हैं. सविता पब्लिकेशन publishes a monthly magazine on 15th of every month. Every month, monthly magazine है. It sells advertising space in the magazine to the advertiser. Terms क्या है? 80% sale value payable in advance, balance in 30 days of the publication. In fact, ये लाइन मेरे लिए important नहीं है, पैसा कब मिलता है. 80% advance मिलता है, even 100% advance मिलता है, is not a criteria to book the revenue. Criteria is performance is achieved. Services should be random.
The sale of space for March month, March issue is made in February. मार्च में जो मंथली मैगजीन हम 15 मार्च को रिलीज करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट की जगह तो बुकिंग हो ही गई है, एडवांस में बुक करना पड़ेगा, फेब में ही हो गया, उसका 80% तो मिल भी गया होगा. The magazine was published on its scheduled date. So 15 मार्च को मैगजीन पब्लिश हो गया. It received 240. 15 मार्च के पहले 80% पैसे भी आ गए थे. 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट था, 80% 2,50,000 आ भी गया, एंड रिमेनिंग 20% मुझे 30 डेज के अंदर आएगा. आगे बाद में पढ़ता हूँ. तो मैं 15 मार्च को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ या नहीं करूँ? ऑब्वियसली करना है. मैगजीन इज रिलीज्ड, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, revenue should be recognized. 80% money is received earlier and 20% later is not a relevant thing. The only relevant thing is that there should be no uncertainty about the consideration and collection. आगे क्वेश्चन बढ़ता है. Discuss with AS, right? Revenue to be recognized, etc. अब दूसरा क्वेश्चन. What will be the treatment? Next question. If the publication is delayed till 2nd April, हम 15 मार्च को बुक रिलीज करने वाले थे, 80% मनी भी मिल गया था, बट हम 15 मार्च को रिलीज करें उसके पहले ही मोदी टीवी पर एक अनाउंसमेंट कर दिया. क्या वो थाली बजाया कुछ था ना कार्यक्रम, समथिंग वाज देयर, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. हाँ, जनता कर्फ्यू. वो जनता कर्फ्यू था और 15 मार्च के पहले ही, मतलब 15 मार्च मिडनाइट 12 o'clock बोलते हैं ना, 14 की मिडनाइट 12 o'clock वो जनता कर्फ्यू लग गया. सो वी कुड नॉट रिलीज द मैगजीन. और एक्चुअल रिलीज कब हुआ? ईयर एंडिंग 31 के मार्च के बाद 2nd अप्रैल को एक्चुअल रिलीज हुआ. तो बताओ मेरे को, इन दिस सिचुएशन, जनता कर्फ्यू वाले सिचुएशन में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब? पैसा मिल गया था 80%, पता है ना, बट रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? ऑब्वियसली 2nd अप्रैल, द डेट ऑन विच the magazine is released, performance is achieved. The receipt of money 80% was not important. आपको सही पता है. Next question. Goods given the following information, the non connected some 3-4 transaction. बताना है revenue कब recognize करना है. Goods of 60,000 is sold on 20 March. हमने 20 मार्च में goods बेच दिया. But क्या? At the request of buyer, the goods are delivered on 10 April. अरे हमने तो 20 मार्च को goods बेच दिया, हम लोग शिपिंग भी करने वाले थे, उसके पहले बायर का फोन आ गया था, पता है ना, चेन्नई से फ्लडिंग हो रहा है, डोंट डिस्पैच द गुड्स, ओनली व्हेन आई से यू डिस्पैच. तो एक्चुअल डिलीवरी मेरी 10 अप्रैल को हुआ. तो बताओ मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? 20 मार्च. When the delivery is withheld at the buyer's request, then the revenue will be recognized. Next question. 15 January, goods were sent on consignment basis, of which 20% are unsold with the consignee. आंसर देना है. कंसाइनर मीनिंग कंसाइनमेंट. जो लोग ने CA फाउंडेशन स्टडी किया उनको ये पता होना चाहिए. What is consignment sale? अरे सिंपल है, अकाउंट छोड़ो ना, धंधे की एंगल से बात करो. राइट, मैं बोलता हूं, आप सोच लेना, आप वही कहना चाहती है तो राइट होगा. अरे और किसी को देना है आंसर? हाँ बिल्कुल सही. किसने बताया? अरे कंसाइनर इज द ओनर हु गिव्स गुड्स टू होम? ओ मिस्टर न्यूमरस स्टूडेंट, उसको बुला, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा. अरे न्यूमरो वाला है ना, एक्टिव स्टूडेंट ना, आ जा इधर. I'll tell you क्यों आगे आ जा. सपोज आपका इधर परफॉर्मेंस इज नॉट अचीव्ड ना, तो मुझे डाउट आएगा अबाउट द प्रोग्राम आल्सो, ये डिलीवरी सही तरीके से प्रोग्राम की कर पाएगा कि नहीं. बात सही है कि नहीं? डाउट तो आएगा ना, क्योंकि इसकी जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेरेंट यहाँ समझते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भेजा गया है, वो तो नहीं हो रही है अचीव. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको भेजा, आपको सबको पता है ना. क्या लग रहा है? सब स्टूडेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हैं? करना चाहिए, बट कर रहे हैं कि नहीं वो तो मेरे को डाउट है ना.
गारंटी नहीं है। ऑलराइट, देखो मेरा बहुत सिंपल है। सपोज आप नहीं आते हैं तो नहीं आते, नहीं आते तो नहीं आते, बट इफ यू आर हियर तो पूरा पढ़ लेने का, कम से कम वो एक टॉपिक तो समझ में आ जाए। पास होने की कन्वेंशनल एग्जाम है अभी हमारी, वो जिस तरीके से हमने एमसीक्यू सेम 1 सेम 2 पास किया था, सेम 3 भी ना शायद, वो मौका नहीं मिलने वाला। तुमको भी पता है कैसे पास किया था, मुझे भी पता है, वो चांस नहीं मिलने वाला। वो अच्छे दिन चले गए, ओके, अच्छे एक्चुअली बुरे स्टडी के लिए। एनीवे, सो वॉट एवर डे यू कम, ये पूरा ध्यान दे देने का। मैं तो बोलता हूँ ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट रो, लेट योर पेशेंस फेल। नहीं आया उसने, ठीक है, आई एम ओके विद दैट, मेरे को कोई समस्या नहीं। आया तो पूरा पढ़ लेने का, पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं, हाँ, कंसाइनमेंट सही बताया था आपने। अरे कंसाइनर इज द ओनर, मुझे गुड्स बेचना है, नया प्रोडक्ट है, न्यू मैन्युफैक्चर, मुझे कोई लोग जानते भी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, एक बार बायर देखेगा, पक्का खरीदेगा एंड ऑल दोस। बट जैसे बायर वगैरह आते नहीं है, मुझे सेल तो बढ़ाना है, तो मैं मेरे डीलर को, कस्टमर तो आंसर है, मैं होलसेलर मैन्युफैक्चर, तो आई हैव अ डीलर, उनको फोन करके बोलता हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ले लो, परचेस कर लो मेरे से। बोलता है मेरे को, डीलर मुझे बोलता है मुझे डाउट है हमारे कस्टमर खरीदेंगे कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑल राइट, यू मिस्टर डीलर, मैं तुझे गुड्स दे रहा हूँ, यू बिकम माय एजेंट एंड यू सेल द गुड्स। आपका गुड्स बेचा, ऑफ कोर्स पैसा आपको मिलेगा, आप अपना 20% मार्जिन कट कर लेना और मुझे मेरा 80% देना। यू बिकम माय कमीशन एजेंट, लाइक सो यू हैव टू पे मी ओनली व्हेन यू सेल दैट हेलो। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो एजेंट है उसे टेक्निकली कंसाइनी वर्ड बोला जाता है। कंसाइनी इज द एजेंट who sells goods on behalf of the consignor owner. He gets a commission when he sells goods. अब मैं मैन्युफैक्चरर, मैंने भाई साहब कंसाइनर को 1,50,000 का गुड्स दिया, तो जिस दिन मैं गुड्स देता हूं, क्या उस दिन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? पक्का नहीं करेगा। गुड्स बेचा नहीं है, उसके पास पड़ा है तो भी मेरा ही है, आई एम द ओनर। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो गया, सब मेरी रिस्क है, मुझे एक पैसा वो नहीं देगा। लेकिन उसने 80% आगे बेच दिया, अब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि वो 80% के लिए मेरा कंट्रोल चला गया, मेरी ओनरशिप भी चली गई, रिस्क रिवॉर्ड भी चला गया। आई डोंट हैव डाउट अबाउट द कंसीडरेशन कलेक्शन, वो मुझे दे देने वाला है, वो डाउट नहीं है। सो कंसाइनमेंट सेल्स में only when consignee agent sells the goods to that final consumer, on that date हम लोग मैन्युफैक्चरर विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, ठीक है। एंड जितना गुड्स उसके पास अनसोल्ड है उसके लिए मैं रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। 15 जनवरी गुड्स ऑफ 1 लाख was consignment basis, of which 20% are unsold. आप खुद ही उसका आंसर देखेंगे, सेकंड पॉइंट का आंसर, सेकंड पॉइंट का आंसर किधर है? 20% of goods lying unsold with the consignee should be treated as my closing stock, closing inventory. Sales should be recognized for 80% of the goods. In case of consignment, revenue will not be recognized until the goods are sold to third party by the consignee agent. ठीक है, फर्स्ट वाला तो आपको पता है। अरे मैं किधर हूं? थर्ड वन, 120 worth of goods sold on approval basis, याद आया? सेल ऑन अप्रूवल, हम कस्टमर को टाइम देंगे 1 month, 2 month, 3 month, विद इन दैट ही विल हैव टू से यस और नो, ठीक है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल इज 3 months, after which they are considered to be sold. So within 3 months he can give back the goods at any time, no question asked. 3 months तक उसने गुड्स नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली सोल्ड। Buyer sent approval for 75% of the goods,
1 मंथ में या 2 मंथ में 75% ने तो बायर ने अप्रूवल दे दिया, वी वांट टू कीप इट, तो वो तो उसी दिन रिकॉग्नाइज कर देंगे 75%, the day on which buyer gave me approval. But no approval or even disapproval, हाँ या ना कुछ भी नहीं, received for the remaining goods until the end of the year, और 3 months भी खत्म हो गया है, तो रिमेनिंग 25% का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं या नहीं? बायर ने रिजेक्ट नहीं किया है, तो रिजेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया ऑन द लास्ट डेट व्हेन दैट पीरियड इज ओवर। यस, बिल्कुल सही सोच रहे आप लोग। देखो किधर गया? इन केस ऑफ गुड्स sold on approval basis, revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer or the buyer has done an act adopting the transaction. मतलब buyer ने सपोज आगे बेच दिया तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया, और the time period for rejection is over, or where no time period was fixed, reasonable time has passed. Therefore, हे भगवान, इसको पीछे से आगे बुलाया फिर फायदा नहीं हुआ। मैंने अभी अभी कितना लंबा भाषण दिया था, तो उसको परेशान मत कर भाई, इसको पढ़, ठीक है? सो फाइनल आंसर क्या हुआ? द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। 75% उसने तो हाई बोल दिया था, रिमेनिंग 25% ऑल्सो यस, बिकॉज टाइम इज ओवर, ठीक है? फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम द अबव, ये 3 ट्रांजेक्शन तो ही है, वो तो हमने कर दिया। इन एडिशन टू दैट, कंपनी हैज मेड ए कैश सेल 780 ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो क्या करें? ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट गिवन normal course of business will be deducted, and 780 minus 5%, 39,000 minus कर दो, 780 minus 39, 741,000 sales will be recognized, वो तो हमको आता है, 11th standard सम सीखते हैं। Trade discount should be deducted which is given in the normal course of business। ये पहले वाला हो गया। ये 45 वाला वही क्वेश्चन है जो सबसे पहला किया था, रिपीट किया है क्वेश्चन यहाँ, कि हमने इनवॉइस में लिखा था इंटरेस्ट विल बी चार्ज वंस योर क्रेडिट पीरियड इज ओवर, आज तक किसी ने दिया नहीं है, तो रेवेन्यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, सेम क्वेश्चन था। ओके, इसके साथ हमने एक्चुअली ज़्यादा टाइम ले लिया, क्या ज़्यादा टाइम ले लिया, यहाँ तक तो मुझे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करना चाहिए था, जो मैंने अभी किया। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड सीखे, बहुत काम का स्टैंडर्ड है, कौन सा पता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 प्रैक्टिकल है, आपको सब लिखना है। रुकिए, अभी रुको 1 मिनट। उस स्टैंडर्ड का नाम है अर्निंग पर शेयर। क्या मैं नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं कि इसी में कंटिन्यू करूं? आपको क्या लग रहा है? शुड आई स्टार्ट द न्यू रिकॉर्डिंग